On this special occasions, I welcome you all, especially the chairpersons, directors, deans, head of departments, who came over here to grace the occasion on our invitation. Few days back, the registrar informed me that he wanted to have one interaction program with the affiliated colleges. Then I immediately reply him that it is nice idea you can have, not only once in a year, but it should be at least within the period of 3 months or 6 months, so that we can know our problems. They can know our university problems, and we can also know their problems and how we can remove that. What are our bottlenecks and what is the remedies to remove such type of difficulties? Because the university's image and reflection always depend on the progress and academic curriculum of the institutions. What I mean to say that if our institutions, colleges are growing up in a very successful manner, then ultimately that is the success story of the university. And if they are not doing well, it means the university is not performing well. So before that, I would like to submit few points, and my registrar and controller examination will also explain to you. The Uttarakhand Technical University, this auditorium, is very historical in so many sense. Because when the inauguration of this parishar was made, that is recently 5-6 months back, by Honorable Chief Ministers, then the first delivery of Honorable Chief Minister was delivered by here. The Honorable Governor, when I joined here, I invited him, Dr. K.K. Paul Sahib, who have demitted his office today itself, but he has left behind his so many successful history in the field of higher education. Such type of unique personalities we had in Uttarakhand in the form of Rajyapal, and I have learned a lot of things from him, because he was not only the administrator, but he was the very excellent academician also. In each and every aspect, his knowledge was very thorough. He was very good orator also. And in the field of higher education, maybe technical education, medical education, Sanskrit education, or higher education field, his contribution is remarkable for the Uttarakhand. And therefore, on this special occasions, I am remembering his contribution forever. I hope that the governor which we are going to receive on 26th will also be such a wonderful chancellor as a gift for Uttarakhand, because he is also having the very wide knowledge in the field of administration. Apart from that, coming to the point of agenda, explain karoge, right? So I would like to डिस्कस विद यू पीपल, कुछ जनरल चीज़ें मैं बताऊंगा, बाकी जो एजेंडा आइटम है रजिस्ट्रार्स रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएंगे। एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया है इस एडवर्स मौसम में भी, और आप यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सभी का स्वागत भी है और धन्यवाद भी है। सिंह साहब नाराज क्यों हो रहे हैं? दिखाई दे रहे नाराज हो? नाराज तो नहीं ना? ठीक। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने इस साल श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की में भी कुछ 2-4 सब्जेक्ट हो या पेपर हो जहाँ कुछ प्रॉब्लम हो, छूटे हो, लेकिन हमारा एक जनरल जो परसेप्शन रहा है कि हम टाइमली अपने रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दें। जो गवर्नर हाउस में टॉपर्स कॉन्क्लेव हुआ था 6, 7, 8, 9, 10 अगस्त को, उससे पहले सबका एक था कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के कोऑपरेशन से द यूनिवर्सिटी ने जो है पहली बार अमंग द ऑल यूनिवर्सिटीज
the results declared by the Sardev Suman Universities, and this is the compliments to all of you. इसलिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत सारी हम लोगों की सहायता की है, डिफरेंट वे में किया है और डिफरेंट तरीके से किया है। इसलिए आप लोगों को विशेष रूप से मैं आभार भी व्यक्त करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा, साधुवाद भी दूंगा। और तीसरी चीज़ जो हम कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें मैंने बहुत नोटिस किया है इस दौरान, कभी कभी रिजल्ट्स डिक्लेयर क्यों हो जाते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मैंने मेन कारण देखा है, जो हमारे सेमेस्टर सिस्टम जब से लागू हुआ है तो उसमें जो मार्किंग है, इवन द टीचर्स इज नॉट हिज कंसेप्ट, हिज और हर कंसेप्ट इज नॉट क्लियर कि ये सेमेस्टर सिस्टम है क्या, व्हाट इज द क्रेडिट, how much credit should be received by the students in particular semester, and how the practical marks can be given, especially in the field of assessment in terms of projects, in terms of dissertations, in terms of viva voce, and so other curriculum activities. Therefore, our concept should be very clear regarding the semester system. Last year I had one workshop at Tehri itself in my campus, where we have elaborated in detail that what is the semester system, how you have to give the marks, and how you can award the degree. So all things have been already elaborated. I am again trying to this year also one day workshop at least on semester system should be held at Tehri campus itself, और उसमें जो हमारी प्रॉब्लम्स आएगी, जहां हम लोगों को पता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों रिजल्ट्स निकलने में डिले हो रही है, और किस तरह से इसमें जो असेसमेंट्स के मार्क्स है वो देने चाहिए। इस बार हमने उसको वर्कआउट किया हमारी सिलेबाई कमेटी ने, और हमारे सिलेबस मोस्टली जो है तैयार हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया अपने कंट्रोलर एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रार महोदय से कि आप लोग उसको जल्दी फाइनल करके सभी कॉलेजों को भेज दीजिए और वेबसाइट पर भी रखिए, ताकि कोई उसमें कन्फ्यूजन न रहे, और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकता है। तो सेमेस्टर सिस्टम टाइमली होने चाहिए, उसके असेसमेंट सही होने चाहिए, विशेषकर जो हमारे इंटरनल असेसमेंट के टेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हमें मिली हैं, और कभी कभी जो है जब अवार्ड्स लिस्ट आते हैं तो उसमें असेसमेंट जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स छूट जाते हैं, या कभी कभी कोई कॉलेज वाले उसको डबल करके एक ही जो है मार्क्स लिख देता है, तो जो कि सही तरीका नहीं है। प्रत्येक सेमेस्टर में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के अलग अलग होने चाहिए, और जो असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट है उसके मार्क्स बिल्कुल डिफाइंड होते हैं, 20 या 30 जो हमने डिसाइड किया है उसमें से उसको कितना मार्क्स मिला है, तो उसी बेस पर उसका ये हो जाता है। दूसरा हमारा रिक्वेस्ट आप लोगों से यह है कि ठीक है, हम जानते हैं आप लोगों की मजबूरी क्या है, क्योंकि आप लोगों को इंस्टीट्यूट चलाना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि लड़कों की अटेंडेंस रजिस्टर को लेके आती है। तो हम लोगों का बड़ा स्ट्रिक्ट कंसेप्ट है कि जिस बच्चे का 75% से नीचे अटेंडेंस होगा वो बच्चा एग्जाम में नहीं बैठेगा। इसलिए आप लोग काइंडली इंश्योर दैट द स्टूडेंट शुड हैव एट लीस्ट 75% अटेंडेंस, ताकि जो है वो फिर परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हो। तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, और बहुत इसमें स्ट्रिक्टली जो है हमें रूल को फॉलो करना है। और तीसरी बात जो है, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस है दे आर डूइंग वेरी वेल, इवन बेटर देन द गवर्नमेंट कॉलेजेस, लेकिन अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं जो उसमें हमें दुख होता है, जब हमारे एग्जामिनेशन के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड जाती है या हमारे ऑफिसर्स जाते हैं, तो किसी बहुत सारे प्रकार के नाना प्रकार के कंप्लेंट हमें मिला है, रिसीव हुआ है। मैं उस पर डिटेल में नहीं व्याख्यान करूंगा कहाँ हुआ है, किसके यहाँ हुआ है, लेकिन इस तरह की जो है गड़बड़ियाँ होनी नहीं चाहिए। इससे यूनिवर्सिटी की इमेज भी ख़राब होती है और इंस्टीट्यूट का तो ख़राब होता ही है। अब होता क्या है कि कहते हैं ना, एक मछली जो है पूरी तालाब को ख़राब कर देती है। तो अगर किसी इंस्टीट्यूट ने, हमारे इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट करा रही है, और उनकी वजह से जो है यूनिवर्सिटी का आगे नाम भी होता है और उसका एक रिफ्लेक्शन भी अच्छा जाता है, लेकिन थोड़ी सी गलती के लिए, थोड़ा से लोगों के द्वारा
वो पूरा जो मेहनत है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो ये आप लोग काइंडली इंश्योर दैट कि जो एग्जामिनेशन के दौरान है अवॉइड करें, आप कॉपी होनी नहीं चाहिए। और करना क्यों चाहिए उसमें, क्योंकि अदरवाइज उस एग्जामिनेशन की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आप लोग इस तरह की एग्ज़ाम कराओगे, लड़कों को केवल पास कराना है, तो ऐसे हायर एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। दैट इज़ जीरो टू माय ओपिनियन ऑल्सो एंड नन अवॉइड फॉर द हायर एजुकेशन सिस्टम को। कि बच्चे को आपने डिग्री दे दी, उस ठीक है, वो डिग्री उसने ले लिया, लेकिन करेगा क्या डिग्री का? इवन he or she will not in position to say something while facing the interview board. I have seen so many candidates in the interview board also. As a chairman of recruitment committee in Haldwani, the person or student is having more than 90% or 85% marks, but zero in his orientation program. He can't open his mouth if you are asking something to him. So therefore, such type of education we don't require in Uttarakhand. Our education system should be very solid and it should be excellence in the field of higher education. एक तो ये चीज़ें कही मैंने। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे कुछ सिलेबस जो बने हुए हैं, आप लोगों के भी हम कमेंट्स लेंगे कि आजकल देखिए पैटर्न चेंज हो गया है। जो आउटडेटेड सिलेबस है, बहुत सालों से चले आ रहे हैं, 20 साल 25 साल, या यूजीसी ने अभी लेटेस्ट बनाया है, और वो लेटेस्ट उसने पूरे कंट्री के लिए बना है यूनिफॉर्म सिलेबस सिस्टम। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट है स्टेट के हिसाब से कि उसमें हमें चेंजेस करना है, जैसे आप कह सकते हैं कि उसमें तो यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया है कि आप 30% से ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे और आप 30% जो है सिलेबस को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का सजेशन मैं चाहूँगा, जहाँ आप लोगों को लगता है, आपके कमेंट्स में चाहूँगा कि सब इसमें जो है ये चैप्टर ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा या हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा।